get away. Same is the case with Enron और ये सब जो होते हैं, right? So जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने corporate governance के anti-bribery clauses और ethical code नहीं लिखे हों. So we're not, again, please understand what Sanjeev Bikhchandani said in his tweet. आप follow करना उनका Twitter. He specifically said, आप कितने भी strong governance system set कर सकते हैं, कितने document आप sign करवा लें लोगों से. But if the leader at the top is not ethical, he will find a way to cheat the system or beat the system, and he will put the lives of everybody at stake because वो leader है. remember कि जिस दिन पकड़ा गया उस दिन सबकी लाइफ स्टेक पे, जॉब कट्स भी होंगे, इन्वेस्टर्स के भी लॉसेस होंगे, सभी का लॉस है. उसकी अपनी खुद की रेपुटेशन तो खत्म हो ही जाती है, राइट? एंड इट हैपेंस, राइट? सो समटाइम्स द मोस्ट एथिकल पीपल गेट ट्रैप्ड, लाइक रजत गुप्ता एट मैकेंजी, वेरी फेमस स्टोरी. उसके बाद उसने किताब भी लिख डाली, बड़ी अच्छी किताब है, आप पढ़ो उसको कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट ही कांट अब्सॉल्व हिमसेल्फ. व्हाट इज डन. हाँ, फाउंडर ऑफ आइस भी है, हाँ बिल्कुल है, राइट? दुनिया की हर सबसे बड़ी अच्छी चीज क्रिएट की है उसने, हाँ की है, बट अनएथिकल. There was a lapse of judgment. It was caught. सर, अनएथिकल का जो सबसे बड़ा है आर्थर एंडरसन फोल्डिंग अप, एनरॉन के बाद. Even in the Tech Mahindra case, EY was, I think PwC was fully exposed. जो सत्यम के बाद. Yeah. You can't get away. Either the karma will catch up in your lifetime or later or whenever. Or मैं तो बड़े लोगों का सुना है कि I don't know whether you believe or not, health crisis होती हैं लोगों के घर में, unexpected. They don't realize why it's happening. One can link back. Unexpected चीजें हो जाती हैं लाइफ में. So I think it's your, I would say that कि यहाँ पर ना, it's not so much of the business sense part of it. Of course business benefits बहुत सारे हैं of being ethical, right? And I can't oversell you because there are enough case studies to prove कि companies return ज़्यादा देती हैं, ROI ज़्यादा होता है, IRR ज़्यादा होता है, जहाँ ethical boards होते हैं, ethical leaders होते हैं, right? जहाँ corruption नहीं होता है, वो सब तो आपको मिल जाएंगे case studies. The question is, what is your internal belief system about this? What kind of a company do you want to build? It's a very personal thing. Ethics is a very personal subject मेरे हिसाब से. ये सिखाया नहीं जा सकता, right? So either you are courageous or you are convenient or practical about it. There's I think a mix also. कई लोग हैं जो कहते हैं कि हम ethical हैं because they are following ethics on certain fronts, but काफ़ी जगह पे वो अनएथिकल भी हैं. वेरी कन्वीनियंटली दे बिलीव कि वो ठीक है, कैमोफ्लेज कर देते हैं वो एथिक्स को, कहते हैं कि बिकॉज दे मेक इट एन एक्सेप्टेबल नॉर्म कि दिस इज पार्ट ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ अ नेशन और अ कम्युनिटी, और दे आर ओके विद इट. सो देयर आर इश्यूज विद इट. एग ईटिंग वेजिटेरियंस. So we've discussed a lot about ethical dilemmas जो हम face करते हैं, right? So just food for thought, right? You're the CEO contemplating decision of whether or not to lay off employees during a recession. Recession आ गई, completely unexpected, COVID की वजह से आ गई. So what do you do at that stage? These are tough choices you have to make, courageous choices. Again, ethical dilemmas. You see, you firing a person because of non-performance, acceptable. But high performer during a recession, non-acceptable. Right? So you find out a way to not only retain the person but inspire people to create something. So sometimes for small companies you can have big victories, in spite of whatever challenges you're facing. In our case, we could inspire everybody to pitch for the PM Museum project. काम ही नहीं है करने को, पैसे नहीं आ रहे, कहीं से वेले बैठे हैं, चलो पिच करते हैं, राइट? तो कुछ आप नया चीज़ क्रिएट कर लेते हो, राइट? So I'll share a very simple decision making framework with you. This is something, इसका आप फोटो खींच सकते हैं, ये आसानी से याद नहीं होगा, बट कभी भी खोल लो इसको, जब भी कोई ऐसा डिसीजन आए तो खोल के बैठ जाओ. Very simple flow chart.
बड़ा अच्छा सा है। I'll explain it first. पहले क्वांटिटी है जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो भेजो तो सबसे पहले पूछो कि इज द प्रपोज्ड एक्शन लीगल। पहले तो लीगल फ्रेमवर्क से बात करते हैं, ये सबसे पहला टेस्ट है। Okay. हम सबको पता है क्या लीगल है क्या लीगल नहीं। प्लीज डोंट से कि टिल आई गेट कॉट इट्स लीगल। द क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इज इट लीगल? आंसर इज नो, वहीं पर स्टॉप कर दो। सही बात। इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, मतलब इट टेक्स करेज, राइट? अच्छा चलो लीगल है, अब आगे बढ़ते हैं। So does it maximize shareholder value? Because as a company that's a very important objective, right? Shareholders की वैल्यू बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? आंसर इज नो। अब हम लीगैलिटी से हम एथिक्स पे जा रहे हैं। It doesn't maximize shareholder value, but is it unethical? Unethical का क्या मतलब? Weigh the harm or cost that would be imposed on shareholders against the cost or benefits to other stakeholders. So legality के बाद हम shareholders को prioritize कर रहे हैं, but उसमें भी हम कह रहे हैं कि अगर आंसर नो आ रहा है, shareholders की वैल्यू मैक्सिमाइज नहीं हो रही, तो अब हम let's do a cost benefit analysis. Is it unethical? Weigh the harm or cost that would be imposed on share, मतलब shareholders का नुकसान फायदा कितना होगा अगर आप ये डिसीजन लेते हो जो कि शेयर होल्डर्स के फेवर में नहीं है, बट बाकी स्टेक होल्डर्स के फेवर में। फॉर एग्जांपल रिसेशन के टाइम आपने अगर एम्प्लॉयज को फायर किया तो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करेगा, बट आप फायर नहीं कर रहे हो, सो इज इट अनएथिकल? आप शेयर होल्डर्स को बेनिफिट नहीं कर रहे बट किसी और स्टेक होल्डर को बेनिफिट कर रहे हो। आपने एक ऐसा डिसीजन लिया, टफ वन, जैसे यूएस में तो बिल्कुल आंख बंद करके काम होता है। इफ इट डजंट बेनिफिट शेयर होल्डर्स, वी वोंट डू दिस। सैक 10,000 पीपल ओवरनाइट, वेरी कॉमन। इंडिया में अभी इतनी आसानी से नहीं करते। स्टार्टअप्स में अब होना शुरू हो गया। सभी किसमें मीशो ने फायर किया, किसने किया? वन ऑफ द मीशो Some So that people- some other US startup fired how many over a Zoom call? वो हाँ, 800 वो 900 तो हाँ, वो- 900 तो अगर अमेरिकन इन्वेस्टर्स होंगे तो वो इस टाइप की चीज़ें पुश करेंगे, ये करो, बिकॉज पैसे बचाओ, प्रॉफिट बढ़ेगा, उसका शेयर बढ़ गया था उसी दिन। हाँ जी, उसका Profit शेयर बढ़ first. गया था उसी दिन। Huh? उसके 900 निकालने के बाद भी शेयर बढ़ गया। हाँ वो ठीक है। They celebrate. So if it is not unethical, but cost benefit analysis ठीक है, बाकी स्टेक होल्डर्स को फायदा होता है, तो do it, but disclose the effect of the action to your shareholders. So it's like मान लो आप उस पोजीशन में और आपको लोगों को फायर करना है और आप नहीं करते हो फायर बिकॉज आपको लगता है कि एथिकल नहीं है इस टाइम पे फायर करना है, तो एटलीस्ट डिस्क्लोज इट टू योर शेयर होल्डर्स कि आई हैव टेकन दिस एक्शन बिकॉज आई रियली बिलीव दिस पीपल आर इम्पोर्टेंट फॉर द कंपनी और हम इस सेशन से बाहर आ जाएंगे जल्दी। मैं फायर नहीं कर रहा हूँ, टेम्परेली शेयर प्राइस गिरेगा क्योंकि हमारा प्रॉफिट गिरेगा, बट डोंट वरी, डिस्क्लोज अगेन, करेज, डिस्क्लोजर, वॉलंटरी डिस्क्लोजर कि कंपनी का लॉस होगा टेम्परेरी, शॉर्ट टर्म, सो इट्स अबाउट द करेज, राइट? ऊपर वाले पार्ट में जाएं, डज इट मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू? यस। अगेन क्वेश्चन, इज इट एथिकल? टू आंसर, कंसिडर द इफेक्ट ऑफ डिसीजन ऑन ऑल स्टेक होल्डर्स, कि आप शेयर होल्डर को तो बेनिफिट कर रहे हो बट कहीं कहीं ऐसा तो नहीं एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहे हो, कम्युनिटी को नुकसान कर रहे हो। लाइक द टाटा एग्जांपल दैट यू हैड गिवन, जो जेबीज में जो लेबर को पूरा रेट पे नहीं कर रहे थे तो डिसाइडेड टू कम आउट ऑफ दैट जेबी, We come out of it. so because it was maximizing the shareholder value, but it was not ethical, It was not ethical. so Exactly. then that is how they Exactly. because तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सो ग्रीन एनर्जी, कोल एनर्जी, इन सब में ये टेस्ट काफ़ी आजकल फॉलो होता है कि बाय इन्वेस्टिंग फर्दर इन कोल और नॉन ग्रीन फ्यूल सोर्सेज ऑफ फ्यूल, ESG it down might, taking. हाँ जी,
ESG is now kicking in. is taking into place, right? So it might benefit shareholders in the short term. जैसे इंदिरा नूई के केस स्टडी आपको याद हो, तो she made some choices, tough choices कि मैं जो है कोला बेस्ड ड्रिंक से या जो शुगरी ड्रिंक्स हैं उससे थोड़ा दूर जाना है, Healthy. न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट्स पे जाना है. So it was not maximizing shareholder value in the short term, right? तो वो आंसर था कि does it maximize? No, right? फिर बट अगर वो yes होता तो then you have to ask is it ethical? Right? So Coke ने on the other hand had taken the other decision. तो इंदिरा नूई नीचे की तरफ गई, कोक ऊपर की तरफ गया इस फ्रेमवर्क में. कोक ने डिसाइड किया कि भैया हम तो कोक ही बेचेंगे, उसी से शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइज होती है, उसी से हमारी सेल्स बढ़ती हैं, प्रॉफिट बढ़ता है और स्टॉक प्राइस बढ़ता है. बट दे डिड नॉट केयर अबाउट द इम्पैक्ट ऑन अदर स्टेक होल्डर्स. दे डिड नॉट केयर अबाउट द फैक्ट दैट कि डायबिटीज़ बहुत बढ़ रही है सोसाइटी में, ओबेसिटी बच्चों में आ रही है. आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, टाइप 2 डायबिटीज़ इन किड्स इज बिकमिंग अ नॉर्म. छोटे बच्चों में 5-6 साल के बच्चे में टाइप 2 डायबिटीज़ आ रही है. I've heard so many cases. It's because of this, what we eat, right? So there the choices are again getting impacted. So if the answer is yes, it is ethical, then you do it. If it's no, don't do it. Right? यहाँ पर अगर is it unethical? Yes, don't do it. So if you notice, it's a very simple framework, जिसमें 3 filters हैं: legality, shareholder value, right? And बाकी stakeholders पे क्या impact है. And that's allowing you to ask these questions to decide what you need to do. तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगी. तो ये फ्रेमवर्क याद भी नहीं रखना पड़ेगा. It's not so tough. बट थोड़ा सा इसके लिए ना यू हैव टू ब्रॉडन योर विजन इन टर्म्स ऑफ कंपनी के बारे में. जब आप सोचते हो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो. एक 2 साल का होराइजन रखोगे तो ये इस टाइप के डिसीजंस नहीं ले पाओगे, मैटर भी नहीं करें. आप देख लो कि अगले साल का टर्नओवर कितना बढ़ाना है, तो क्या ये फिर फ्रेमवर्क तो आप रखिए डिसाइड कर. दैट कांट बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग. दीज आर थिंग्स टू डू विद योर वैल्यू सिस्टम्स. And I think सर एक फैक्टर और है कि the way you want to be treated, you know, you have to really think about it. तो आप वैसा ट्रीटमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मतलब मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर आप you know you're taking out money from your company in form of tax planning, whatever, आप प्रॉफिट कम करके दिखा रहे हो और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इन्वेस्टर आप में पैसा डाले. हाँ, आप डालोगे क्या? नहीं डालोगे. So the moment you start thinking from that angle, so a lot of your own actions become, I mean, it become very clear to you कि ये आपको नहीं करना चाहिए. ये नहीं करना. If you want to achieve something else. मैंने प्रशांत बहुत सारे लीडर्स को देखा है अपने सिस्टम्स को चेंज करते हुए कि 15, 20, 25 साल से दे फॉलो सर्टन प्रैक्टिस कि हर चीज़ बैकएंड पे अलग है, फ्रंट में कुछ. I have witnessed them changing their entire systems to keep it absolutely transparent and white. In the last 5 years. अरे यार फर्क नहीं पड़ता है यार, मतलब मेरी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज नहीं हो रहा है. मैं पहले भी BMW में घूमता था, अभी BMW में घूम रहा हूँ. पहले भी अच्छी जगह जाता था वेकेशन पे, अभी अच्छी जगह. वाई डू दिस? काय को स्ट्रेस ले? इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं सिर्फ एक झूठ बोलने से. कल्चर और मैनेज करना पड़ता है कि लोग देखो, आपके हर टीम मेंबर को मालूम होता है कि जब आपने झूठ बोला, चाहे गवर्नमेंट को बोला या किसको बोला, everybody knows from start to end. It has to impact your culture. आप कितना, आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल लो, उसके बाद it will impact. तो कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जहाँ पर हम टाइम मटेरियल बेसिस पे पेमेंट करते हैं, मतलब पेमेंट लेते हैं क्लाइंट से. दैट मीन्स वी मैनेज अ टाइम शीट, राइट, कि इस रिसोर्स ने इतने घंटे काम किया, उसका ये पर आवर रेट है और आपको पे करना है. A few senior people who associated with us said कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल नहीं, nobody will trust you. Why? क्लाइंट क्वेश्चन करेगा, बिल ज़्यादा आ गया, वो कहेगा आपने ज़्यादा घंटे डाल दिए. बट ऐसा क्यों होगा? Because that's norm. That's what everybody does. ऐसे नहीं चलता. But we don't do it. But why will the client trust you? They will.
Why wouldn't they? They can fight with us and discuss कि ये ज़्यादा घंटे क्यों लगे, हम बता देंगे. वो झूठ नहीं बोलेंगे. वो जो टाइम शीट है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट रहेगी, बिल्कुल एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बना हुआ है, राइट. पौना घंटा से लेके 15 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट जो काम किए एग्जैक्टली वही एंट्री रहेगी. एंड में जाके टैली हो जाएगी, उसकी MIS रिपोर्ट निकलेगी, बिल के साथ रिपोर्ट अटैच होएगी. आप बिलीव नहीं करोगे, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाइंट टिल डेट who's come back to us and said कि आपने ओवर बिल कर दिया. वो ये ज़रूर, जैसे एक मीटिंग हुई हमारे कि यार आपके रेट बहुत ज़्यादा है, हमारा खर्चा हर महीने का इतना आ जाता है, बात कर लेते हैं, विल फाइंड आउट क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ताकि आगे से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. अपना सिस्टम इम्प्रूव करते हैं, रेट चेंज नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर रहेगी. आपको ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम बैठेंगे. वी हैव एब्सोल्युटली नो इंटेंशन इन ओवर चार्जिंग और स्पेंडिंग मोर टाइम एंड एफर्ट. तो टीम को भी पता है. अच्छा, फनी बात क्या है, टीम इज नॉट गेटिंग मॉनिटर्ड ऑन नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क. आई मीन ऑफ कोर्स वी मॉनिटर कि हमने सबको बता रखा है कि आइडियल आवर्स इज 180 आवर्स इन अ मंथ. 8 घंटे डेली के, सैटरडे संडे छुट्टी, सब ऐड अप करोगे तो 176 to 180 आवर्स होते हैं. हमें पता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान 70-80% से ज़्यादा काम नहीं कर सकता लगातार. 1 महीना 2 महीना करके उसके बाद उसका वर्क लाइफ बैलेंस, हेल्थ सब इम्पैक्ट होने शुरू हो जाता है. तो हमने उसको नॉर्म बना दिया. सिर्फ 180 आवर्स इज व्हाट वी पे यू फॉर एनीवे इफ यू आर ऑन अ फिक्स सैलरी. बट वी आर क्वाइट ओके. हाँ जी, 130 140 बहुत है. हाँ, अगर 140 150 आपका कंसिस्टेंटली आ रहा है बहुत बड़ी बात. तो वी आर ओके. जैसे ही वो उससे नीचे जाता है तो हम उनसे बात करते हैं, भाई क्या चक्कर है, काम नहीं मिल रहा, तबीयत खराब होगी, क्या हुआ था, रीज़न मिल गया, ठीक है, अंडरस्टूड. बट नोबडी इज क्वेश्चन ऑन कमिटमेंट, ऑन द फैक्ट. अगर किसी के बहुत ज़्यादा कम घंटे हैं तो उसको फ़ोन करके पूछना पड़ता है कहीं अपडेट करना तो नहीं भूल गए थे, तो अपडेट करना कर दो फिर. राइट. बट पेनलाइज नहीं होता कि भाई आपने कम घंटे काम किया तो कम घंटे पैसे मिलते. सो देयर इज नो इंसेंटिव इवन फॉर द टीम टू पुट इन फॉल्स आवर्स. तो फिर क्लाइंट के सामने हमें कोई कुछ छिपाना ही नहीं पड़ता. सो ट्रस्ट मी, दीज सिस्टम्स वर्क. ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम्स काम नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं. प्रोवाइडेड फ्रॉम द टॉप लेवल इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन टू द पीपल दैट दिस इज एन एक्सेप्टेबल नॉर्म, दिस इज द स्टाइल ऑफ वर्किंग. इट इज कमिंग ऑल्सो. अभी रिसेंटली हमारे साथ भी ऐसा हुआ है that 1 year last we have had 2 examples where people have said कि आप मीटिंग में टाइम लगा रहे हो, give us a rate for the meet when you will be attending the meeting. Okay. So there's now a fixed rate, and recently we quoted for some project, and उसमें there was one gentleman who is part of the Maruti group, so he is mentoring them on occasional basis. So he said आप अपना man hour rate भी दे दीजिए, that in case this is non project work we should have a rate, hourly rate with you. So first time we quoted and we felt very confident, and we said next quote we will start submitting our man hour rate as well. Makes sense. ठीक है, non project work what is included, but non project you want us, this will be the man hour rate. Yes. As a leader you feel like you want to give the client a discount, that is fine. Right. You know, you can say that कि हमने कुछ एडिशनल आवर्स खर्च किए जो हमें लगता है हमें आपको चार्ज नहीं करने चाहिए, वो हमने माइनस कर दिया, वो और खुश हो जाएगा यार. यू नो, इट क्रिएट्स एक कल्चर में ना एक बड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है. लगता है यार यहाँ लोग सच्चे तरीके से काम कर रहे हैं, प्योरिटी है, एसेंस में सफाई है. कोई भी किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं कर रहा. एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को धोखा नहीं दे रहा, एम्प्लॉयर क्लाइंट को धोखा नहीं दे रहा, तो क्लाइंट हमें क्यों धोखा देगा फिर. वो भी लगा हुआ है, वो भी ट्रस्ट करता है. And I think when you speak the truth, or मतलब scientific basis पे भी I read somewhere, I don't remember exactly, but जो आपकी टोन है, जो आपका you know when you are speaking the truth, probably जो एक जो subconscious mind capture करता है, your body odor, when you are lying it is different, when you are speaking the truth. तो ये तभी लोग in person मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये जो subconscious mind कैच कर रहा है ना चीज़ें जो हमें शायद नहीं पता. So when somebody is pitching to you, suppose मतलब आपके सामने कोई पिच कर रहा है और वो अगर झूठ बोल रहा है तो you'll catch it,
और जब वो जाएगा ना बोलोगे फेंक रहा था, Yeah. you know, so your gut would know that ये बंदा It worked with us also. अभी PMCs थी हमारे पास कुछ project management, so there were teams which were engaged only for projects and they were built accordingly. So जब COVID में lockdowns हुए and practically work was not happening, तो हमने उनको सिर्फ अपने आप ही by our own decisions we said just we'll be billing you only the salary of that person. हम अपना कुछ नहीं लेंगे इस वक्त. So it continued and they were very happy कि ठीक है आप सैलरी ले लो उस लड़के की हाँ. जो भी एंगेज थे. इंटीरियर आर्किटेक्ट्स में भी कभी ये बड़ा चलता है ना कि मतलब अंदर इंटीरियर आर्किटेक्ट्स में बड़ा चलता है कि दे बाय, जैसे होता है ना कि सिंस हमारा तो जिस हम करा रहे हैं ऑफिस फ्रेंड की तरह, बट आई एक्सपीरियंस की इंटीरियर आर्किटेक्ट में ना दे डोंट चार्ज फीस फ्रॉम कस्टमर्स, वो बाइंग में दे प्ले. मेरे साथ यही चैलेंज था, इसलिए आई केम आउट ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट टोटली बिकॉज उसके बिना काम ही नहीं होता था. और मेरा बैचमेट्स है जैसे यार पत्थर वाले के बिना अलमारी के, इसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता. Or you disrupt the system, right? हाँ. So you understand. बट कि दैट्स देयर नाउ. अभी आई केम आउट ऑफ रेजिडेंशियल टोटली. काफ़ी डिस्ट्रप्शन हो रही है, राइट? सो B2B इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रप्शन इस टाइम पे हुई इसी वजह से रही है कि जो बीच में जो दलाल होता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है किसी को मालूम नहीं. दैट्स व्हाई प्लेटफॉर्म्स आर गेटिंग क्रिएटेड. ट्रांसपेरेंसी एंड डायरेक्ट सो वो मौका है. तो विजिबिलिटी. सिस्टम तो सारे डिस्टर्ब होंगे. हाँ. ब्लॉकचेन की बात करें तो उसका भी ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि कहीं कोई झूठ ही ना बोल पाए. So everything is headed in that direction. So I would suggest that कि doesn't matter what you've been following for last 20, 25, 30 years of your journey. You can change everything tomorrow morning. नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा. मैं बताऊँ इतना टॉप लाइन पे फर्क नहीं आता जितना हम सोचते हैं. राइट? कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क आता है, करेज में बहुत फर्क आता है, सेंस ऑफ प्राइड में बहुत फर्क आता है. So I think that's what we're aiming for. So let's quickly look at Azim Premji, very inspiring guy, amazing chap. Right. Became chairman of Wipro at 21. By the way, it's again a family business. Azim Premji को लोग professional समझते हैं, but family owned आपके जैसा ही है बिल्कुल. तेल. FMCG कंपनी होती थी, Yes, तेल की, घी. अभी भी करते हैं. हाँ. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत फर्क नहीं है आपसे शम्मी. ऐसा ही आदमी है ये. नेक्स्ट प्रेम जी हमारे. Right? So it's okay to take inspiration from people like him. So $2 billion की कुकिंग पैड कंपनी थी, IT, BPO, R&D सब खोला. मेरे फादर ही दिल्ली. $8.5 billion in revenue, presence in 58 countries. 2005 में पद्म भूषण मिला. पीछे कोई मुझे बता रहा था कि ये पद्म भूषण वगैरह भी आप पैसे देके खरीद देते हो. Need some support from a lobby. Somebody told me, said कि यार मुझे अगली बार मिलना है. मैं कहते को पहले से मालूम. What are you saying? Thankfully उसको मिला नहीं. नहीं तो पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है. Because he didn't deserve. Right? ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने आज तक लाइफ में. रियल एस्टेट का एंटरप्रेन्योर था, 800,000 करोड़ का उसने टर्नओवर क्रिएट किया. But that can't be the reason to get a पद्म भूषण. खरीद के नहीं बट इन्फ्लुएंस से तो मिलता ही. I don't know कि क्या स्टोरी Influence तो पूरा ही होता है. इन्फ्लुएंस से तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती है हाँ. क्लियरली. एटलीस्ट दैट पद्म भूषण लेवल. बट उसमें भी आप नोटिस करोगे ना 10% अवॉर्डीज हमेशा वो होते हैं जिनको वैसे भी जो मिलना होता है. जेन्युइन होते हैं. हाँ, वो काम ही अच्छा करते हैं. 10 नहीं सर I think 90%. हाँ 90%. 90%. I don't know. Right. And ये सब हुआ. Forbes globally puts him in the list of the most generous philanthropists. And एक कुकिंग ऑयल कंपनी है शम्मी. जैसे नए बाजार में रहते थे पहले. हाँ जी. They were on Delhi 6 में, मतलब my father used to trade with them as well. ऐसा they used to trade. दिल्ली 6 में, दिल्ली 6 गए ये लोग. Yeah. Delhi 6. तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब Azim Premji. $25 billion का ग्लोबल IT पावर हाउस है. अब जाकर मुझे जेम्स. Right. फिर वो आपके सुभाष चंद्र जी भी नए बाजार में. तो खूब सारी डाइवर्सिफिकेशन की इन्होंने. जी के साथ काम किया. Y2K का टाइम आया और ईयर 2000 में दे गॉट देमसेल्व्स लिस्टेड इन US, जो ADR receipts होती है, एंड इट बिकेम्स इंडियाज लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर. एंड 2001 में he set up the foundation with the aim of improving primary education in India. So you have to be passionate about something. See, as entrepreneurs, you have to understand life is not just about wealth creation. Right? So I spent quite some time with you, right? And it has somewhere led you to work towards a few other areas, What? right?
which may have had some indirect impact on your business also, because you seem more satisfied and more motivated about building a business. तो आप कहते थे यार समझ नहीं आ रहा business कर क्यों रहे हैं. End of the month, that number. Right. You have to go a little bit differently. थोड़ा सा tangential जाना बहुत जरूरी है. For every entrepreneur by default, it is not optional. Philanthropy has to be an integral part of your life. An integral part. So 4 p.m. today, I have a meeting with Salam Balak Trust. I am pushing them for a meeting. उनके पास टाइम नहीं है, मैं मतलब कह रहा हूँ यार टाइम निकालो, बताओ क्या क्या चैलेंजेस हैं. बहुत चैलेंजेस हैं उनके पास. ऑफ कोर्स माय पर आवर कॉस्ट इज 25-30,000 रुपये पर आवर. मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बट आई हैव टू क्रिएट वैल्यू फॉर देम एंड देन सी हाउ आवर क्लाइंट्स कैन क्रिएट वैल्यू फॉर देम एंड व्हाट BOT कैन कंट्रीब्यूट. मतलब क्या फर्क पड़ता है आप छोटे हो बड़े हो. हर एंटरप्रेन्योर का दिल बड़ा होना बहुत जरूरी है. अगर नहीं है तो कर लो, बहुत जरूरी. You can't work with a small heart. You have to be a giver if you're an entrepreneur. And it's not charity. Right? It will help you become more successful. I promise you. So if you're not doing it, you do it. So this guy has done lots of it. Tata's का तो पूरा premise ही यही था. When they created the company, it was a foundational value that whatever profits we earn have to go back to the society. That is why Ratan Tata is not rich. He doesn't have too much wealth. They were not busy creating wealth for themselves, like the Ambanis. They did not have to buy such a big ugly tower to live in. You added ugly. And You added ugly. Huh? You added ugly along with It is ugly. The world calls Design it तो अच्छा हो ugly. सकता था. Right? It's such an ugly tower in the middle of Bombay. Wealth can be quite ugly if it only spent on yourself. Create wealth for yourself. Buy your luxuries. Okay. But Tata's का तो principle ही totally different रहा है. Nobody can match the level of contributions, the charity they have done for the nation. कोई match ही नहीं है. आसपास भी नहीं है कोई. But I think again वो उनकी basic values से नहीं आता. Like Parsis as a community. Value से ही आता है. सारा गेम ही वहीं से start Upbringing तो वहीं से. Exactly. Parsis as a community है. Yes. They have. Right? But Cyrus Mistry भी Parsi. Right? So I think But उस level पे चलो अच्छा नहीं होगा, पर उतना खराब भी शायद नहीं होगा. उतना खराब नहीं होगा. Right? So but their principles were कि that is why you have Tata Trusts. Right? So जितना भी profit आज भी TCS कमा के उन्हें देता है, majority profit वहीं से आ रहा है, वो टाटा ट्रस्ट में जाता है. जो डिविडेंड्स कमा के आते हैं वो पैसे सोशल में ही जा रहे हैं. सोशल इम्पैक्ट में ही सब खर्च हो रहा है. इट्स अनबिलीवेबल. दे डोंट स्टॉप डूइंग इट. Imagine how inspiring it is for every single employee of Tata Group कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका एक हिस्सा हमेशा फिलैंथ्रोपी में जा रहा है, कंट्री को, नेशन को बिल्ड करने में जा रहा है. Right? So I don't know if you're aware about these facts, but he received 18,000 crore in dividends and buybacks in the past 5 years from 67% of Wipro shares. All of that went to his endowments. 18,000 crores. अपनी फट जाती है 1 करोड़ का चेक लिखने में भी. सोचो 18,000 करोड़ का चेक लिखना. It takes what? Courage and confidence. Right? Premji topped the Edelgift Huron India philanthropy list. And this is a very interesting fact which I really enjoy a lot. In 2019, he dropped from the second position in the Forbes India Rich list to the 17th position after giving away a huge amount of his charity. So he's not going after that ranking. I mean, Elon Musk is #1, but he likes that rank. He's in love with that rank. He's not in love with the rank. He's happy to be ranked in the other list, givers ki rank.
he's okay यार, कोई बात नहीं, I may not be the richest man in India anymore by giving away my wealth. It takes courage. Right. Elon Musk said he wants to buy Twitter because he can. Yeah, it's a lot of arrogance, right? So, yeah, so that thing is there. ट्विटर की तो बहुत सारे जने वो कर रहे हैं ना। Elon Musk said he Richard wants to Branson. buy it because he can. So he says the real threat to business is from within the organization. हम कई बार competitive threat को we pay a disproportionate importance. कि competition ये कर रहा है, वो कर रहा है. He says the real threat is within the organization. Poor ethical standards and lack of integrity can do incalculable harm to the organization. In a world that is plagued by constraints, being an ethical organization calls for serious and sustained action. Integrity and unflinching commitment to values is what builds the backbone of a strong business. It is this that drives the trust that society, clients, and employees place in any enterprise. So, Shami, how does it matter? He is also an oil guy. Right? How does it matter if you took some tough choices? इतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करी उसने, काउंट करते करते थक जाओ और वो बिना काउंट किए देते जाते. What is missing in his life? Nothing. And we can talk about him like a case study. Isn't that inspiring? So ये इनकी कंपनी के वैल्यूज हैं, right? Be passionate about client success. Treat each person with respect. Unyielding integrity in everything we do. Be global and responsible. So the sense of corporate citizenship. There's a sense of ownership that he wants to drive. And again, leading from the front. He says the most important lesson of my life is that truth and integrity are the foundation of everything. Everything. In the absence of integrity, everything falls apart. कुछ सीखा होगा लाइफ में, देखा होगा, खुद भी कुछ गलतियां की होंगी. That's why he's saying it's a lesson. While if we are willing to face the truth and speak the truth and have integrity in all actions, we can be confident that things will finally fall in place. From 1966, ever since I took over the responsibility of Wipro, I have tried to practice this. It's a drag. इतना आसान नहीं है, कोशिश करता है. बीच बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जब कॉम्प्रोमाइजेस हुए होंगे. It has not been easy. However, the most important thing that I believe has been the foundation of everything that I've done is the commitment to truth and integrity. जो आपने commitment word बोला, truth के बात हुई, integrity, self integrity. This guy has practiced it and he's successful. मतलब कोई fail तो नहीं हुआ. और फिर उसके बाद अपनी टीम के साथ काफ़ी एफर्ट डाला है, कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स डीप एथिकल बिहेवियर, राइट? बट ही सेज दैट इट बिगिंस नॉट एट द टॉप बट एट द बॉटम. नीचे भी काम करना इक्वली इम्पोर्टेंट, लोगों को बताना कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे काम. एम्प्लॉयज नीड टू नो दैट कंप्लायंस इज नॉट अ टिक बॉक्स. हैज टू बी द ब्लड स्ट्रीम. टिक बॉक्स कंप्लायंस नहीं करना है, अपने आप से पूछना है ये सही है कि गलत. टिक बॉक्स कंप्लायंस इज द लीगल वाला क्वेश्चन. एथिकल इज अ मोरल क्वेश्चन. यू कांट से आई एम लीगली एथिकल and get away with it. Get away from whom? You will get away from the law, but can you get away from yourself? You can't. It's what makes people sleepless. ये केस है, एक बॉम्बे में एक यूनियन लीडर था जिसने 20 रुपए का बिल फेक किया था. Sacked him. उसके बाद यूनियन की स्ट्राइक हुई. They wanted this guy back. इस सेठ के मैं अपनी फैक्ट्री बंद कर दूंगा, फिर इस बंदे को वापस नहीं लूंगा. अगले दिन सारे लोग वापस आ गए. He didn't care about his temporary losses. My batchmates who joined Wipro 20 years back told me then that everybody travels economy and stays in three star, like majority of Wipro, and one fake bill or anything unethical, next day you're out. You're sacked. Very clear. It No was tolerance. told to them
zero tolerance, no questions asked. Leave. End of story. End of story. आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया, अब ये स्टोरीज बन जाती हैं ना फिर, मतलब फिर लोग उसे बार बार दोहराते हैं. That's how organizations, great organizations are built. This is how we do it. So, ये हमारा तरीका है काम करने का. It's not to say that other organizations are not successful, but it's okay. You have to make a choice. How do you want to build your organization? जब जागो तभी सवेरा है, by the way. So you don't have to be self-judgmental, get into this guilty feeling कि यार अभी तक तो हो नहीं पाया, आगे करके भी क्या फायदा. It's about whenever you wake up. So this is an amazing credential, right? It's a global credential. In 2020, it was recognized the world's most ethical company by the Ethisphere Institute for 9th successive year. 9 successful year. Successive year. Amazing credential to carry है. कि कैसे bribe मांगेगा इनसे? मांग नहीं पाएगा. 9 साल तक लगातार. And this is a global trend. And Global there's trend. an institute also for this. हाँ, ये बनी है ना, because otherwise अगर सिर्फ आप richest companies की ranking देखोगे, richest companies might not be the most ethical companies. May not be here. May not. 9 out of 10 will not be. Amazon. Because they know how to make money, which many people do. We also know that making money is not entirely an ethical exercise. So can we safely say that Wipro doesn't bribe? Safely तो मुझे मालूम नहीं. I mean, Right? But at least they're implementing. can this. be an I can't know assumption. the inside story of anybody. he tried. He tried. said- He says. He says he tried. Yeah, and he's taken action. He's shown leadership by action. Of course, कहीं ना कहीं कुछ तो हो ही रहा होगा यार. You know, कहीं ना कहीं कोई compromise कर रहा होगा छोटा मोटा. But predominant culture तो यही है ना. नहीं to bribe government. I think so. That is why they are getting. नहीं तो कोई confidently कैसे बोल सकता है? जिसको जो ड्राइव कर रहा होगा ना, वो कभी मार्केट में खुल के नहीं आएगा इस बात में. Reliance has never come out saying we are the most ethical. Right. कर ही नहीं सकता ना, वो कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहा. Adani, Reliance. ये लोग कभी नहीं बात करेंगे, एथिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे. करेंगे तो लोग इनकी ले लेंगे. Actually. वो हमेशा इसकी बात करेंगे हमने कितनी वेल्थ क्रिएट करी, हमने कौन सा नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 10 GB गीगावाट से बोले ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया. अब ये This can never be the narrative. Ethics would not be a narrative, part of the narrative. Integrity would not be a part of the narrative because they don't practice it. And it's okay, that's their choice. But karma क्या चाहिए? Sooner or later. रिलायंस का एग्जांपल है सर. रिलायंस से कोई भी एसोसिएटेड पर्सन, चाहे चेन में किसी भी लेवल पे हो, हमारे दे क्लियरली नो कि रिलायंस का कल्चर क्या है. आई हैव माई फादर हैज़ बीन डीलिंग विद रिलायंस फॉर 20 years. रॉ मटेरियल लेते थे डायरेक्ट कंपनी से, कभी ड्राइव नहीं किया होगा कंपनी, क्योंकि बहुत वॉल्यूम छोटा था हमारा उनके कंपैरिजन में, महीने का 100-200 टन का. बट क्लियरली नो, जो भी बात होती थी कि यार ठीक है कल्चर ख़राब है कंपनी का, साथ में वो ये भी कहते थे कि हाँ अगर प्रॉफिट कमाता है तो लगाता इंडस्ट्री में ही है, जो सर ने कहा कि वेल्थ क्रिएशन करता है, चाहे कंट्री की करता है, चाहे अपनी करता है, चाहे उसकी करता है, एम्प्लॉयज़ की करता है, बट कल्चर ख़राब है. But I felt quite opposite with Reliance itself. मैंने खुद उनसे डायरेक्टली डील की है. Now their culture is very much refined. काफी फर्क है. बहुत पिछले ज़्यादा 7-8 फर्क है. साल मैं का पंकज फर्क भी है. बात करता हूँ 5-7 साल पहले तक की. अब मैं बात करूँ 5 साल बाद की. They are much more refined, much more integral and loyal. और कोई भी bribery और इस तरह की कोई बात ही Improvements नहीं हैं. So I also keep hearing this. I think there is a recognition that they need to change. So ब्राइबरी से ज़्यादा जो बिजनेस एथिक्स खराब थे, जो मान लो पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज. सौदा ना फर्क आ रहा होगा. प्लास्टिक्स पैसा कमा लिए बाबूजी ने, अब कह रहे हैं एथिकल हो जाते हैं. हाँ ऐसा ही हाँ, ऐसा भी होता है. हाँ ऐसा भी हो सकता है. ऐसा ही होता है. Right, ऐसा भी होता है कि अब सब खोने का डर है. हाँ, सब होने का सब होने के लोग डर से. सब लोग बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चलो कर टाटा को लेते खोने हैं. का डर नहीं होगा. Hmm. Because they are enough. And Tata point in time, they used to struggle with the government a lot. अभी तो फिर भी वो गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहे थे, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट से गवर्नमेंट के साथ इसी बात पे होते थे.
गवर्नमेंट कहते थे कि बॉस सब कुछ तो लाइसेंस राज है, तो यू हैव टू पे मनी अंडर द टेबल इफ यू वांट अ लाइसेंस. दे वुड कीप फाइटिंग. राइट, एयर इंडिया भी तभी लूज हुआ. But today it's a different world. I think everybody recognizes governance standards. And just to share with you, probably I'm not saying BJP is ethical, right? But probably